Hello everyone. Once again, this is Pankaj Chauhan and PhD scholar from IIT ISM Dhanbad. So, as you all know that we are discussing on PhD interviews of different people. So today also we have one more guest. She is Rama Balhara. She is from IIT Gandhinagar. Actually, today our story is a little bit different. She got admission in IIT Gandhinagar in 2018-2019 batch. Actually in MTech. So after that, she converted into PhD. She gave interview that time also once again. So we will discuss with her little more in details. So we'll start first with introduction, as you already know that. So hi Rama, good morning. Hello Pankaj, good morning. So how are you today? I'm good. How are you? I'm also good. So as our aim of this video series is to provide valuable information those who are preparing for interviews for IITs and for good institutes in all over the India. So the main aim is to provide very genuine information, right? So we will discuss about your interview experience in IIT Gandhinagar, so that जो हमारे viewers हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में जानेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो टिप्स हैं तो आप शेयर करेंगी, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके. सो स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सो प्लीज आपका इंट्रोडक्शन बताइए थोड़ा सा. Yeah, so hello everyone. Myself Rama Balara. Basically, I am from Haryana and I am doing PhD in IIT Gandhinagar. But I took admission in MTech in 2018. After 1 year, I converted my MTech to PhD, and this conversion can only be happen if your supervisor and you both agrees on this point, and your interest is very high in research, and your goal for future for your thesis is very predefined. Then only you can easily convert your MTech to PhD. It also takes permission from higher authorities like director and board of governors. So these type of cases will handled by higher authorities. But still, first your interest is main priority. Okay. So I gave interview for the MTech in 2018. सो बेसिकली आपने पहले एमटेक में के लिए इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आपका एमटेक कन्वर्ट हुआ था पीएचडी में. उस टाइम भी आपने एक इंटरव्यू दिया था, राइट? इज इट राइट? सो योर बैकग्राउंड इन अंडर ग्रेजुएशन इज मैकेनिकल, राइट? यस. सो आपने एमटेक में कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया था आईआईटी गांधीनगर में? Actually, IIT Gandhinagar work on interdisciplinary branch. So when I take admission, then it is shown as mechanical MTech. So there is no specific branch in IIT Gandhinagar. So मतलब वहाँ पे you can do. Yeah. So वहाँ पे एक अपना आप बोलिए. You can do research in any field under any supervisor. They have their special field in PhD or postdoc. But your degree named as MTech Mechanical. So जैसे आपने वहाँ से एमटेक के लिए आपके पास इंटरव्यू कॉल आया था, तो आपका गेट स्कोर के बेसिस पे था, राइट? यस सर. तो आपका गेट स्कोर कितना था उसमें इसके इंटरव्यू के लिए? 692 at that time. At that time in 2018. 2018, right? Yes. So I took admission in 2018, but my GATE score applicable for that GATE 2017. I took admission after 1 year. तो आपकी जो बीटेक थी वो एक प्राइवेट कॉलेज थी, राइट? प्राइवेट कॉलेज से थी, राइट? यस. तो काफी बच्चों का डाउट होता है कि अगर हमारा प्राइवेट कॉलेज है या हमारे पास अच्छा कॉलेज नहीं है हमारे अंडर ग्रेजुएट में, तो वो उनके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है. तो इज इट गुड, इज इट एक डिफिकल्टी लेवल आता है जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं. देन आफ्टर दैट you need to improve your basic concepts. So मैंने गेट के लिए आईएएस के लिए प्रिपेयर किया था, साथ में गेट के लिए प्रिपेयर किया था. तो वो कंसेप्ट के लिए आपको 1 साल मिनिमम तो देना ही पड़ता है. मतलब अंडरग्रेड अगर आपका किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज से है तो इतने कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होते कि आप इतना गेट स्कोर ले पाओ कि आईआईटी में या फिर पीएचडी में एडमिशन हो जाए. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक कंसेप्ट. तो मतलब बेसिकली ये चीज सच नहीं है कि अगर आप अंडर प्राइवेट कॉलेज से हैं तो आपका होना बहुत मुश्किल है. तो ये एक तरह से सच बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, राइट? यस. तो आप अगर थोड़ा सा भी शार्पली इस चीज को हैंडल करते हो तो आप 6 महीने में गेट की तैयारी कर सकते हो. बेसिक कंसेप्ट पे वर्क करके आप एटलीस्ट इतना स्कोर तो लेके आ ही सकते हो कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है. अच्छा.
तो अगर बात करूँ जैसे कि प्राइवेट कॉलेज से आईआईटी में जाना, तो वैसे तो बहुत प्राउड की बात है। फिर आपको कैसा होगा, फील हुआ था उस टाइम? हाँ भाई, मैंने थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड किया है लाइफ में। हाँ, एक्चुअली जैसे कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इट्स समथिंग लाइक कि आईएएस नहीं हुआ था, देन आई मूव इनटू डिफरेंट फील्ड की एमटेक के बाद पीएचडी करके इस लाइन में आगे हाँ, जाते हैं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय अंडरग्रेड। लाइक अगर मैं कोई किसी और फील्ड में जाती तो बीटेक का पूरा एक तरह से वजूद ही हट जाता। तो आई अच्छा जस्ट अच्छा। वांट टू कंटिन्यू माय बीटेक एंड देन फर्दर स्टडीज, या फिर मैं बीटेक करूँ तो आईएएस वाली लाइन में जाऊँ। तो मैंने 1-1.5 साल टाइम दे के देखा, बट आईएएस में नहीं हो पाया। बट स्टिल ऐसा था कि बेसिक कंसेप्ट या कुछ ऐसे तैयारी के बाद ये रियलाइज हुआ कि इतना नहीं कह सकते कि इस लाइन को छोड़ देना ही सही रहेगा। तो मैं एमटेक वाली फील्ड में गई, और आईआईटी में जाने के बाद एक को जब बीटेक प्राइवेट कॉलेज से किया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और एक थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग तो आती है कि जब आप आईआईटी में हाँ, एंटर करते हो, क्योंकि वो आपका सपना लाइक आफ्टर 12th भी होता है। ओके ओके, राइट राइट। आफ्टर 12th बहुत सारे बच्चे अपना जेईई की तैयारी करते हैं, राइट। तो आपको आईआईटी का एटमॉस्फेयर, आईआईटी गांधीनगर के बारे में थोड़ा कुछ डिटेल्स अगर आप बताना चाहें। आईआईटी गांधीनगर की बेस्ट पार्ट ये थी कि अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा मटेरियल साइंस में है या किसी और ब्रांच में है, मतलब अगर आपको बीटेक में भी वो ब्रांच नहीं मिल पाई जिसमें आपको काम करना है, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट पे काम करती है। तो आप किसी भी ब्रांच में काम कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, इवन एमए का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, एमएससी का भी ले सकते हो। तो अच्छा, वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल का ही पढ़ोगे। ओके ओके, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो बाकी आईआईटीज में ऐसा मेरे हिसाब से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ये आईआईटीज भी नया है, और सुना भी काफी न्यूज में भी रहता है कि आईआईटी गांधीनगर से ये न्यूज आई है, आज ये न्यूज आई है। तो काफी अच्छा एक वहाँ पे वाइब्रेंट माहौल है एजुकेशन को लेके। बाकी वहाँ चीजें। पे जो हम्म, यस, वहाँ पे जो थीसिस का वर्क है, लाइक एमए वाले टेक्निकल के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, अपनी हम्म, थीसिस उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो हम्म, इसमें मिक्स थीसिस भी बनती है, और जो भी हम्म। आउटकम होता है, जो भी नई इन्वेंशन होती है, वो मतलब 2-3 ब्रांच को मिक्स करके भी निकलते, तो इसमें ज्यादा आउटपुट निकलने के चांसेस होते हैं। तो तो मतलब वहाँ पे प्रोफेसर भी इंटरडिसिप्लिनरी को प्रेफर करता है। मीन्स मतलब वहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी वाइब्रेंट सा एनवायरनमेंट है, राइट। ओके। यस। सो दिस अबाउट आईआईटी गांधीनगर। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके इंटरव्यूज एक्सपीरियंस के बारे में, कि आपका तो जो कोरोना पेंडेमिक से है उससे पहले इंटरव्यू हुआ था, राइट। तो उस टाइम आपको फिजिकली जाना पड़ा था वहाँ पे, और फिर हाँ, वहाँ पे फैकल्टी पैनल था, फैकल्टी मेंबर्स थे, तो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट थे। जो अब का जो सिनारियो है वहाँ से थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है, बट इट मे बी कि फ्यूचर में ऐसा सिनारियो फिर से बन सकता है। हो सकता है कि काफी आईआईटीज ऑनलाइन ऑप्ट करेंगी, बट फ्यूचर में कुछ आईआईटीज बुला भी सकती है ना। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने गेट को क्वालिफाई किया, गेट स्कोर आपका आया अच्छा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट भी हुआ था वहाँ जाने के बाद, या सिंपल आपको इंटरव्यू कॉल आया था? नहीं, वहाँ पे जाके रिटन टेस्ट हुआ था, और 150 स्टूडेंट्स थे। एक्चुअली 2 दिन तक मैकेनिकल का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू चला था। तो जो पहले दिन था उसमें भी 150 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं रिटन टेस्ट के बाद, एंड देन इंटरव्यू में। मीन्स और ऐसे ही नेक्स्ट डे। हाँ, मीन्स एक पड़ाव और आता है, मतलब गेट क्वालिफाई करने के बाद हमें एक रिटन टेस्ट और देना पड़ेगा वहाँ पे भी आप लोगों को शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा, right? तो मीन्स एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, उसके बाद? तो बेसिकली एक मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका गेट स्कोर कुछ भी है, अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल या फिर शॉर्टलिस्टेड मेल आया है किसी भी आईआईटी से, तो वहां जाने के बाद अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो तो वहां पे रिटन टेस्ट फिर से होता है। तो उस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स एक लेवल पे होते हैं, चाहे उनका गेट स्कोर कितना ही भी हो, लाइक 500 है तो भी चलेगा, 800 है तो भी चलेगा, वो सब एक ही लेवल पे होते हैं, उनका रिटन टेस्ट फिर से होता है। सो आपने एक अच्छी बात बताई यहाँ पे कि डजेंट मैटर कि आपका गेट स्कोर कितना है, अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आया है तो आप जाइए, और वहाँ पे जो रिटर्न होता है उसको अच्छे से दीजिए, ताकि आपका फर्दर आप शॉर्टलिस्ट हो, राइट। तो इसके बाद आपका वहीं पे उस टाइम पे ही आपका रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसी दिन उसी डे आ जाता है रिजल्ट, है ना। यस। और उसके यस, बाद वो आपका सेम डे। हाँ, ओके, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो आपके फैकल्टी पैनल में आपको कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, आप प्लीज आप शेयर कीजिए। तो जब इंटरव्यू का टाइम था तो वहाँ पे पैनल में मिक्स ब्रांच ही फैकल्टी थे, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो वहाँ पे रोबोटिक्स से भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी थे, तो वो लाइक थर्मल पार्ट के भी थे। थर्मल से एक प्रोफेसर थे, तो 4-5 प्रोफेसर थे, क्योंकि जो दूसरे ब्रांच वाले हैं वो अप्रोच देखते हैं, और जो खुद की ब्रांच वाले हैं वो कंसेप्ट देखते हैं। तो वहाँ पे मतलब मिक्स फैकल्टी रहता है। शॉर्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है उनका कुछ पार्ट मैकेनिकल में भी होता है, दैट्स व्हाई वो पैनल में होता लाइक मैकेट्रॉनिक्स, है, राइट। ऐसा नहीं है। हाँ, समथिंग लाइक दैट। सो तो कितने मेंबर थे, फैकल्टी मेंबर कितने थे वहाँ पे आपके पैनल में? 5 5। 5, ओके ओके।
सो आगे नेक्स्ट। तो तो okay, बेसिकली मैं अगर शुरू करूँ तो क्वेश्चन एक बार आप अपना इंटरेस्ट बताओगे कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि थर्मल पार्ट में है, तो आपको हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछने शुरू कर देंगे। अच्छा और दे आर मैथ्स पे आस्किंग बहुत बिफोर, ज्यादा। दे आर आस्किंग बिफोर कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, उसके बाद अब वो वहाँ से यस, क्वेश्चन पूछेंगे करता है तो यस। हम्म, और मेरे से मैं अपनी बात करूँ तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बेसिक ग्राफ, log x का ग्राफ क्या है, e raised to माइनस x का ग्राफ क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा मतलब वो आपकी बेसिक अप्रोच देखना चाहते हैं, वेदर आपको आता है नहीं आता है, वो सिर्फ ये देखेंगे आपने शुरुआत कहाँ से की है। ओके ओके। मीन्स एक चीज तो मैंने नोटिस किया है अभी, जैसे मैं काफी लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स इज अ काइंड ऑफ मस्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के यस। ग्राफ बेसिक्स वो हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप मैकेनिकल काइंड ऑफ ब्रांचेस से हैं, सिविल ब्रांचेस से हैं, या ऐसी ब्रांच से हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। सो एक जैसे हम अपने व्यूअर्स को बता दें इसी पॉइंट पे यहाँ पे कि मैथमेटिक्स को आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, कौन से ग्राफ का क्या है, जैसे लोगरिथम ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और बाकी 1/x के ग्राफ, तो वो चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेंगी, राइट। तो आपसे कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस हिसाब से आप अपने आप को अप्रोच किया, ऐसा भी हुआ होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं दिए होंगे, तो उस टाइम आपका क्या मतलब वहाँ पे क्या कैसा आपको फील हुआ प्लीज। देखो, मेन एम उनका ये रहता है कि वो कितने क्लियर है, स्टूडेंट के माइंड में कितनी क्लियरिटी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इट्स फाइन, अगर आप सीधा ये बोलोगे कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट लेटर, तो अगर ऐसा भी आप कुछ बता रहे हो तो भी वो पॉजिटिव सेंस में जाता है। बट आपको नहीं आता है एंड देन यू वांट टू रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक और आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, यू वांट टू मेक ब्लफ ऑफ देम एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अगर आपको नहीं आता, आप सिंपली ये बोलोगे नहीं आता, देन इट्स फाइन। तो वो सिर्फ क्लियरिटी देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, इस चीज की भी श्योरिटी और क्लियरिटी स्टूडेंट को है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप बात कर रहा हूँ, जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो मैं भी मैकेनिकल, तो अगर बात करें आपसे कोई भी कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे रहे हैं, लेट्स सपोज कि थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछे होंगे, तो क्वेश्चन कैसे, मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं या कॉन्सेप्चुअल होते हैं या फिर डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब किस हिसाब से वो पूछते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने अपना इंटरेस्ट बताया था थर्मल पार्ट का, तो थर्मल में मैंने बोला था कि मैं, हाँ, एज आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, तो मैं एग्रीकल्चर के बेस पे कुछ करना चाहती हूँ कि उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत सारी क्रॉप खराब हो जाती है, तो कुछ रेडिएशन प्रोसेस है या कुछ हीट ट्रांसफर से अगर हम पहले कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया जाए जिससे वो क्रॉप सेव हो सके, क्योंकि अगर मेरे मेरे परिवार में इतना लॉस हो रहा है, मेरी फैमिली में इतना लॉस हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया क्रॉप में कितना लॉस हो रहा होगा। तो मेरी स्टार्टिंग, इंटरव्यू की स्टार्टिंग ही थर्मल पार्ट में हुई थी, तो उन्होंने पूरा कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट, रेडिएशन, तो ये वाले फिनोमेना इस कंसेप्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आइडिया नहीं है पहले कि आप किस पार्ट में करने वाले हो, बट स्टिल आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया है कि मुझे थर्मल पसंद है तो मुझे उस लाइन में जाना है, तो थर्मल वाले प्रोफेसर होंगे या कोई भी दूसरे प्रोफेसर होंगे, बेसिक उन सबको पता होता है, तो वो आपको उसके बिल्कुल बहुत बेसिक से पूछेंगे कि आप कन्वेक्शन कहाँ लगा सकते हो, कंडक्शन कहाँ लगा सकते हो। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ कि बेसिक नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ओके, तो मतलब इतना हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा रियलाइज करें, थोड़ा सा कि हाँ सब्जेक्ट में क्वेश्चन, जैसे मैं रेडिएशन की बात करूँ या फिर कन्वेक्शन, कंडक्शन, इन सब की बात करूँ, तो एक्चुअली में होता क्या है, वी आई थिंक वी डोंट हैव टू स्टिक ऑन ओनली बुक, वी हैव टू सी इन प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो इस तरह से थोड़ा सा करेंगे तो हमें इंटरव्यू क्वेश्चन अपने आप क्रैक करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो रही आपके एमटेक की कहानी रही। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने जैसे एमटेक एक साल के अंदर किया या एक साल किया, फिर आपने पीएचडी में कन्वर्ट किया, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। हाँ, तो एमटेक में एडमिशन लेने के बाद लाइक सुपरवाइजर से टॉपिक डिस्कस हुआ, टॉपिक मेरा फाइनल हुआ रेजिडुअल स्ट्रेस पे मुझे काम करना है। तो इट इज आल्सो, यस, दिस टॉपिक इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी ब्रांचेस, लाइक फिजिक्स के भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, मटेरियल को करैक्टराइज भी करना है, तो मटेरियल साइंस भी एक ब्रांच आएगी इसमें, फिर मैकेनिकल तो है ही क्योंकि इसमें मैकेनिक्स पूरा आएगा। तो वो तो ऐसे ही वहाँ पे जब डीएससी फॉर्म होती है कि आपकी डीएससी ये है, इसके सामने आपको किसी सबमिट करनी है या इंटरव्यू देना है। एक थोड़ा सा बता दीजिए डीएससी के बारे में, थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को डीएससी क्या होता है। हाँ, क्या होता है कि जो भी मास्टर की थीसिस होती है, जो भी पीएचडी की थीसिस होती है, उसके लिए एक डीएससी मेंबर होता है। तो वो डीएससी मेंबर आपकी जो थीसिस का टॉपिक है उसके बेसिस पे उठाए जाते हैं। लाइक अगर आपकी थीसिस में फिजिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो एक फिजिक्स का प्रोफेसर आएगा, और जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग 4-5 प्रोफेसर ऐसे आएंगे जो उनकी स्पेशलिस्ट में भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा टॉपिक हो, कि वो हर एक और पॉइंट पे आपको सजेशन दे सके कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। दिस इज बेसिकली डीएससी, राइट?
यस। हाँ, तो आगे रहिए प्लीज। तो डीएससी के सामने भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगा कि मेरी एमटेक की थीसिस में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये बहुत ही वास्ट है और मेरा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आया हुआ था, मुझे इसी को ही कंटिन्यू करना है। तो एक पॉइंट ये था वी कैन से दैट कि जब आप मास्टर्स कर रहे थे तो आपने प्रोजेक्ट किया, तो रिसर्च वर्क आपने सेलेक्ट किया था, तो वो आप में उसको अपने आप में काफी इंटरेस्ट आ चुका था ऑलरेडी, तो दैट Yes. थिंग इग्नाइट यू दैट कि मेरे को रिसर्च करना है, इस फील्ड पे और रिसर्च करना है। ओके हाँ, ओके। तो एक पॉइंट ये था कि मैं एमटेक खत्म करके कहीं और से पीएचडी करूं या फिर यहीं से भी पीएचडी करूं, तो उसमें ये आता है कि मैं इसकी थीसिस सबमिट करती, थीसिस लिखती और फिर दूसरा इंटरव्यू लेती एंड देन उसमें भी स्टार्टिंग में कोर्स वर्क वो सब शुरू करना था। तो बस ये चीज थोड़ा ओवरक्रॉस हो जाती, तो मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट करवाने के लिए अप्लाई किया था। आपके सुपरवाइजर से बात करके, आपके सुपरवाइजर से बात करके और फिर रोडीज में फिर आपका इंटरव्यू फिर से हुआ, राइट? यस, वो इंटरव्यू जस्ट होता है कि आप सच में इतना इंटरेस्टेड हो तो ऐसा आपने पहले क्या किया और आगे के क्या स्कोप है और आगे क्या आप कर सकते हो इसमें, कि मतलब कितना विजन क्लियर है, तो वो डीएससी मेंबर के सामने ही प्रेजेंट करना होता है। ओके, सो गाइस, लाइक जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने एमटेक किया, फिर उनका रिसर्च में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और अच्छा इंटरेस्ट हुआ, फिर उन्होंने पीएचडी में फिर से करना चाहा, तो इट्स लाइक ए टाइम काफ़ी सेविंग इन्होंने किया है। जैसे उनका इंटरेस्ट हुआ रिसर्च में, अगर ये पहले एमटेक कंप्लीट करती उसके बाद दोबारा कहीं आईआईटी या डिफरेंट आईआईटी में जाके दोबारा से इंटरव्यू देती, तो उनको फिर कोर्स वर्क करना पड़ता, फिर 1 साल के बाद उन्हें इस टॉपिक पे शायद मिलता है या ना मिलता है, इस टॉपिक पे काम करना पड़ता। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हम किस प्रोफेसर के अंदर, किस गाइड के अंदर हम काम करें। तो बहुत अच्छा है, इन्होंने पॉइंट मुझे बताया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद अगर हमारा रिसर्च में वर्क में इंटरेस्ट है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर से बात करके और डीएससी मेंबर्स के साथ डिस्कस करके, फिर इंटरव्यूज होगा ऐसे करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आप मैं पूछूंगा कि जैसे आपका पीएचडी कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया उस पर, उसी टॉपिक पे, तो अभी चीज़ें कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही हैं या फिर यू आर गेटिंग इंटरेस्ट डे बाय डे मोर? एक्चुअली जो मेनली एमटेक से पीएचडी में जो कन्वर्जन होता है, या फिर अगर मैं जैसे एमटेक खत्म करके और पीएचडी में एडमिशन लेती हूँ उसके बाद जो एक ब्रेक आता है, वो नहीं आया मेरी लाइफ में। लाइक मतलब बहुत स्मूथली जैसे थीसिस एमटेक में चल रही थी वो वैसे ही अभी भी चल रही है, और जो गोल पहले सेट किए थे कि ऐसे मुझे एक्सपेरिमेंटल काम करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है, फिर कंपैरिजन करना है या फिर इसी चीज को एनालिटिकली सॉल्व करना है, तो वो चीज ऑनगोइंग है। मतलब एक ब्रेक में जो टाइम लैग आ जाता है 1 साल का 1.5 साल का, कहीं और जाओगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे, फिर रिटन टेस्ट दोगे, फिर से सारी चीजें शुरू करोगे, तो यहाँ पे हर चीज वेल एस्टेब्लिश थी और मैं सेटल थी। तो मुझे और बेस्ट पार्ट ये लगा कि वहाँ पे लैब सेटअप हो रहा था उस टाइम पे, तो मेरा ऐसा था कि अबाउट टू मतलब इंस्टॉल हो चुका था। जब सारी चीजें ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल करवाई दी थी उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये चेंज करनी। यस, एब्सोल्युटली। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग अभी इंटरव्यूज देंगे, जो लोग एमटेक कर रहे हैं, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप इम्पोर्टेंट टिप्स या कुछ चीज़ें अगर कुछ बता सकें कि ये चीज़ करने से थोड़ा सा हेल्प मिलता है, तो प्लीज शेयर। यस, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि इंटरव्यू के टाइम में वो ये बहुत नोटिस करते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंसेप्ट की क्लियरिटी कितनी है, कंसेप्ट आता है नहीं आता ये क्लियरिटी ज्यादा जरूरी है रेदर कि आपको इस वाले कंसेप्ट की कितनी क्लियरिटी है। मतलब आपको कोई जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ये चीज कितने अच्छे से समझ में आ रही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आता है या नहीं आता। ओके, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करें, बी लॉयल विद योरसेल्फ। वो चीज ये, क्योंकि रिसर्च में यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस फील्ड में जा रहे हो, आपको आता है या नहीं आता है, आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग थीसिस में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी थीसिस, ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं होगी जिसमें मैथ्स नहीं आएगा, क्योंकि एनालिटिकल सॉल्यूशन आपको करना होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको करना होगा, तो हर स्टेप में आपको मैथ्स तो चाहिए। तो आपका अगर वो पहले से बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको थीसिस में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मीन्स आपके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्यों करने वाले हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और कुछ बच्चों का डाउट भी था, मेरे को पूछा भी गया था कि जैसे कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो मेरे को लगता है कि नर्वस होना ठीक है, होते हैं, काफ़ी लोग हो जाते हैं, बट इट विल इफेक्ट योर आंसर। तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे?
अगर एक टाइम पे आपको लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एकदम से पॉपअप हो जाते हैं कि इधर से भी एक प्रोफेसर पूछ रहा है, उधर से दूसरा प्रोफेसर पूछ रहा है, और एक बर्डन आ जाता है अगर आप उनका कंटिन्यूअसली 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो हर चीज फैकल्टी मेंबर को बताना जरूरी है कि अगर आप उस टाइम पे थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, वो फाइन है। प्रोफेसर भी कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ, तो आप 5 मिनट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा it will not give any negative impact, right? क्योंकि ये नर्वसनेस आपके आने वाले क्वेश्चन को इफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ ले जिसको आपको आता था, बट ड्यू टू दिस नर्वसनेस आप आंसर नहीं दे पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा रिलैक्स हो। अगर बीच में ऐसा हो रहा है कि अप एंड डाउन जा रहा है, आपका फील ऐसा आ रहा है कि नहीं मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा, तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए और सर को बोल दीजिए कि मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेल कि कैसे हमें नर्वसनेस को हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें कॉन्फिडेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू ऑफ रमा, and I want to add one more thing here, because she is now general secretary of IIT Gandhinagar right now. So we will ask from her कि कैसे जनरल सेक्रेटरी उनको वो बनी, कैसे वो अभी इस के लिए काम कर रही है। तो प्लीज रमा इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली दिस इज अ ट्रेंड ऑफ एवरी आईआईटी की हमेशा पावर में बीटेक वाले लोग ही रहते हैं क्योंकि उनकी मेजोरिटी होती है, और नया नया कॉलेज होता है, नया नया कॉलेज लाइफ जो होती है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं एज कम्पेयर टू मास्टर एंड पीएचडी। मतलब पीएचडी और मास्टर लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ अपनी थीसिस में जाता है, और एज उनकी एज ज्यादा होने की वजह से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है उनकी खुद की लाइफ की और घर वालों की। तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो भी काउंसिल होती है, मतलब हर इंस्टीट्यूट की काउंसिल होती है, स्टूडेंट काउंसिल, और उनका हेड जैसे जनरल सेक्रेटरी और बाकी सारे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, वेलफेयर सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, टेक्निकल सेक्रेटरी, लाइक दिस। तो बस मेरे दिमाग में ऐसा ही था कि अगर स्टूडेंट काउंसिल में हो तो बहुत सारे आइडियाज जो मास्टर वाले स्टूडेंट दे सकते हैं अपनी थीसिस के रिगार्डिंग या फिर कुछ और फैसिलिटी जो मास्टर को मिल सकती है, तो वो आइडियाज बीटेक वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में इतने इजीली नहीं आ सकते। ऑल्दो दे आर ऑल्सो थिंकिंग वेल फॉर द पीजी स्टूडेंट्स क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल में है, बट स्टिल जो आइडियाज और जो सजेशंस पीजी स्टूडेंट दे पाएंगे वो माइट भी पॉसिबल उनके दिमाग में ना आए, क्योंकि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन वही बता सकता है। तो बस मेरे दिमाग में यही था कि एक बार स्टूडेंट काउंसिल में जाके, या जैसे हमारे आईआईटीज में ऐसा कुछ नहीं है कि एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री मिल सके, या फिर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में कि एमटेक का अलग से वर्क स्टेशन नहीं होता, पीजी वालों के साथ कोलैबोरेशन के साथ बैठना पड़ जाता है कई बार, या फिर बहुत सारी चीजें होती है मतलब जो स्पेशली फैसिलिटी जो पीजी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट उन पे ध्यान नहीं दे रहा, हो सकता है कि वहां तक सजेशन भी ना गए क्योंकि जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। तो बस वो चीज कन्वे करने के लिए मेरे को ऐसा था कि एक बार काउंसिल में होना चाहिए। So this is the first time an PG student is general secretary there. Yes. So it's like a big achievement. It's like a big achievement for you, right? And all the PG all the PG fraternity जो मतलब लोग हैं कि जो सोचते हैं कि PhD is a very big work. So means you are handling two work together right now. One is the general secretary and second is your PhD work. So like you are a very मतलब hard worker kind of person, right? So actually I'm enjoying my passion. Okay. तो ऐसे इंटरेक्ट पीपल, और जो अगर हम एक ही फोकस में काम करते हैं, कई बार कुछ टाइम ऐसा आता है कि बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है, तो उस टाइम पे दूसरा काम भी होना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक दैट। So it's very privileged to have you there in my platform. So thank you so much for sharing your interview experience and other important tips and about IIT Gandhinagar. So thank you so much. And guys who is watching this video, this is all about Miss Rama Balhara. If you like this video, please share and subscribe the channel. Thank you Rama. Thank you.